मोटा अनाज मेला या बाजरा मेला भारत भर में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों और मेलों को संदर्भित करता है, जिनका उद्देश्य बाजरा, रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों के उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह आयोजन मोटे अनाज उच्च पोषण मूल्य वाले सुपर फूड के रूप में बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर कार्यरत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जवानों के स्वास्थ्य संवर्धन, पोषण, जागरूकता तथा मोटे अनाज के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मिलेट्स मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत RAF 103 बटालियन के कमांडेंट द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके की गई। मेले में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य जवानों और आम नागरिकों को बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, कोदो, कुटकी जैसे पोषण मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभों से परिचित कराना तथा उन्हें दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही इट राइट इंडिया, फिट इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियानों को समर्थन देना, जवानों में स्वास्थ्य खान पान की संस्कृति को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य है। CRPF का आयोजन केवल एक मेला नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य भारत अभियान का हिस्सा है, जो सुरक्षा बलों के साथ साथ समाज को भी स्वास्थ्य जीवन शैली की दिशा में प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेले का भव्य आयोजन RAF 103 बटालियन की तरफ से संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण RAF 103 बटालियन के कमांडेंट और कार्यक्रम में पधारे बुद्धिजीवी लोगों को और बच्चों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश इस मेले के प्रति रहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पीछे 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 सर सर रेडी सर थोड़ा पीछे ना, पीछे पीछे सर रेडी सर। Well, it is a pleasure meeting you here. And the theme of this organization, of this program, which is millets, is really, really heart-touching because our cultures, our roots are connected with our millets. So, what do you think about it? How did you organize all such programs? How did it go on well? Just please share your experience with us. Ma'am, we have organized this millets Mela with the sole objective of conveying the message that millets has a very good health benefit, and it has always been a part of our diet in Indian society, in our culture. But all of a sudden, this popularity of millets has gone down. But the health benefit all of a sudden has again become popular among the citizen. And through this Mela, we want to convey the message that millet is a very good Indian food, which has lots of health benefit, and we should always consume this. And can you please tell some of the food items which were organized in the different stalls? We try to prepare maximum dishes with the use of millets, like halwa. That has been always been a part of our diet also, and especially for the force. हलवा है हमारे पास, खीर है, देन स्वीट्स का भी हम लोगों ने अलग अलग बनाया, डोसा बनाया, देन उपमा बनाया, सो मेनी, देन स्वीट्स के डिफरेंट, इवन जलेबी में भी हम लोगों ने मिलेट से ट्राई किया है। तो आज हम लोगों ने अलग अलग स्टॉल में भी वेराइटीज ऑफ फूड वाज डिस्प्लेड, देन वी कैन मेक डिफरेंट वेराइटीज, इट इज नॉट लिमिटेड. We have tried a limited dish, but there are so many dishes that can be made with the use of millets, and that has always been a health benefit for all the individuals, especially in this modern age when maximum of the people are suffering from the lifestyle diseases. This millets is a very good food to control all these lifestyle diseases. In the era of fast food and junk food, how would you suggest people, how would you motivate people to move back to our millets?
I would like to request all the citizens that millets is a very good Indian food that is more beneficial than any other food, I would say. And definitely we should encourage all the shopkeepers, especially those who are selling edible foods. They should make food preparation consisting of millets, so that all children who are the future generation of our country, they should consume good food for a better lifestyle. Thank you. Thank you so much. बात बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मैम एंड सर, डीप कोर ऑफ माय हार्ट, कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हम 103 RAF। धन्यवाद। RAF 103 बटालियन में आज मोटे अनाजों को लेकर एक मेला आयोजन किया गया है, लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए कि कैसे हम मोटे अनाजों से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। क्या कुछ जागरूकता का संदेश जा रहा होगा मैम? मोटे अनाज को लेकर हम लोग जो पतला अनाज खाते हैं, जैसे जी, पचने में भी बहुत दिक्कत करता है, जैसे गेहूँ है और ये जो भी खाते हैं ना, तो वो पचते कम है, मैदा है, गेहूँ। बाकी का जो मोटा अनाज रहता है तो वो जल्दी पच जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और ये क्या नाम है इसका। छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचाएंगे? फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं बच्चे। बच्चों को थोड़ा थोड़ा बोल के जागरूक करो, उनको समझाओ, फिर उसके बाद वो, वैसे तो ये मोटा अनाज नहीं खाते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है पास्ता और ये सब, इसी से ये बच्चों को अलग अलग थोड़ा सा बना के खिलाएंगे तो बच्चे स्वादिष्ट से टेस्ट अलग अलग रहेगा तो बच्चे खाएंगे उसको। आज जो मेला लगाया RAF 103 बटालियन ने, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहेंगे? RAF में जो मेला लगाया है हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे 103 CRPF की तरफ से CO मैम है, टॉयसी मैम है, उन लोगों का इतना हमारे तरफ वो है कि मेले को लगवाया है, वो किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के। बाकी के सभी लोग जवान महिलाएं बहुत खुश हैं। ठीक, ओके। परिचय जानना चाहेंगे मैम आपका? सौरभ, डिप्टी कमांडेंट सौरभ सिंह यादव, 103 में पोस्टेड है। उनकी वाइफ मिसेस राजेश कुमारी यादव। मैम, यदि बात करें जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत आज यह मेला लगा हुआ है मोटे अनाजों का, कैसे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है इन मोटे अनाजों से? देखिए सर, आज के समय में आपको पता है हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है इतना ज़्यादा खराब हो गया कि हम खाने के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बाहर मिलता है वो हम लोग खा लेते हैं। इसकी वजह से आपको पता है कि जो हमारा पेट है, वो पेट से छोटी सी जो समस्या है, एक समय पे बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और इस समस्या का एक ही समाधान है, वो है मोटा अनाज। अब मोटा अनाज जितना हम लोग खाएंगे मिला के, चाहे आटे में मिला के खा लें, चाहे जो भी हमें मिलते हैं, जो हम रोज के हमारे जो रोजी रोटी, किसी में भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो जो हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कहाँ से हमारे पेट से। अगर पेट अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो एक जब कोई भी समस्या होगी उसका ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन। कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं और कैसे उन्हें खा सकते हैं? अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखा जाए, ज्यादातर जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मक्का है, बाजरा है और भी बहुत सारी दाल वगैरह जैसे ये सब रहती है। इनको मतलब थोड़ा सा जैसे क्रश करके, बहुत ज्यादा चूरन टाइप में ना बना के, जैसे आटा वाटा जो रोटी हम लोग खाते हैं उसी में अगर हम लोग मिक्स आटा बना के अगर यूज करें तो जो हमारे पेट की समस्या, आज के समय में पेट की समस्या है सबसे बड़ा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर देखेंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये दवाइयाँ, सबसे हम लोग बचेंगे। बस थोड़ा सा मोटा अनाज मिक्स करके आटे में अगर खाने अगर लग जाए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कैसे उन्हें रोका जाए और कैसे जागरूकता का संदेश दिया जाए? इसमें तो सबसे बड़ा स्टेप तो हम अपने घर से ही ले सकते हैं जी। हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मा ये खाना है, मम्मा वो खाना है। और आजकल की जो महिलाएं वो अपने आप में कक्षा में घर में बना सकती हैं। हमारे पास यूट्यूब जैसी सुविधाएं, बहुत सारी चीजें, बाहर ना जाके घर में बच्चों को अगर शुरू से अगर हम लोग आदत डालेंगे तो सर आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जाएगी। और अगर हम लोग बचेंगे कि नहीं बाहर के, चलो बेटा, अच्छा बच्चे ने डिमांड किया तुरंत लाके दे दिया, मुझे नहीं लगता इस समस्या का कभी समाधान। और सरकार कभी चाहेगी, अगर सरकार सच में चाहे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बंद कर दे, अपने आप समस्या का समाधान हो। लेकिन समस्या सरकार अपना ही फायदा देख रही है। देश की रक्षा के साथ साथ हमारे जवान जो है इस तरीके के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे RAF 103 बटालियन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इस तरीके की सोच का, तो कैसे इस सोच को सलाम करेंगे? इसके लिए तो बस हमारे CO मैम, CO सर, बस
उन्हीं की मेहरबानी है कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। और हमारी ये जो CRPF 103 जो RAF है, इनमें सबका कंट्रीब्यूशन है, एक आदमी का नहीं बोल सकते। सब लोगों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया और आज उन्हीं की मेहनत और हमारी CO मैम का साथ, हमारी ट्वाइसी मैम, इन सब ने मिलजुल के जो आपके सामने है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। नाम जानना चाहेंगे बेटे आपका? विश्वजीत महरिया, सन ऑफ मनफूल महरिया। विश्वजीत जी, यदि बात करी जाए जिस तरीके से आप एक छोटे बच्चे हैं, आजकल जो है फास्ट फूड की तरफ बच्चे आकर्षित हो गए, लेकिन RAF 103 बटालियन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि मोटे अनाजों की तरफ जाया जाए। क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कहेंगे? मिलेट्स बहुत कम पानी में उग जाते हैं और मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिलेट से हमारे हार्ट और ये खून भी बहुत बढ़ाते हैं। बाजरा ही ले लो, बाजरा बहुत हेल्दी होता है। और ये जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए इधर प्रोग्राम आयोजित किया गया है ताकि इन्हें लाए और इन्हें मिलेट्स का स्वाद चखाए। और मिलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा जागरूकता का? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मिलेट्स होते बहुत टेस्टी है, उन्हें कोई भी सब्जी के साथ खा लो, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको, एक बार खा के देखिए। अच्छा, RAF 103 बटालियन ने ये जो कदम उठाया, आप छोटे बच्चे किस तरीके से सोचते हैं? मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत बढ़िया कदम होता है, बच्चे इसकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे और मिलेट्स खाना सीखेंगे। परिचय जानना चाहेंगे मैम? मैं पुष्पांजलि स्कूल से असिस्टेंट इंचार्ज रीना शुक्ला, और यहाँ CRPF कैंप में मेला अटेंड करने आई थी बच्चों के साथ हमारे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना के तहत मोटे अनाजों की ओर अग्रसर होने का ये एक संदेश दिया जा रहा है। आज RAF 103 बटालियन के अंदर एक मोटे अनाजों का मेला लगाया गया है कि ताकि मनुष्य को शरीर स्वस्थ रह सके। क्या संदेश जाएगा मैम? बिल्कुल जाएगा, और श्योरिटी के साथ आज जो जवानों ने हमारे यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज किया है, मोटे अनाज को लोगों ने बिल्कुल पिछड़ा हुआ मान के, गरीबों का अनाज मान के एकदम छोड़ रखा था जो, तो ऐसे मेले में जो मैं आज देख रही हूँ, जो यहाँ स्वाद का मेला है, एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी स्वाद के साथ साथ सेहत का भी, और इसको अवेयर करने, जनता को अगर अवेयर करना चाहें तो ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें मेला। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल के बच्चों को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन इंचार्ज मैं चाहूँगी मेरे स्कूल के बच्चे भी ये जाने कि मोटे अनाज का हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ये शायद ऐसे मेले ऑर्गेनाइज किए जाएं या बच्चों को क्लास में भी कोई ऐसा मैसेज जाए। ऑब्वियस है कि बच्चे इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे और उनकी सेहत आगे सुधरेगी, हमारी पीढ़ियां सुधरेंगी, सबसे बड़ी बात। RAF 103 बटालियन ने धार्मिक कदम उठाते हुए जी कार्य को अंजाम दिया है, बिल्कुल दिया है, और ऐसा कार्य होता रहे। मैं तो कह रही हूँ साल में एक नहीं बल्कि 4 बार होना चाहिए, ताकि बच्चे इसको जाने, समझें और आगे अपने जीवन में इसको फॉलो कर पाए। जी मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो देश को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल, तो आजकल फास्ट फूड की तरफ एक्चुअली फास्ट फूड, मैं इस मेले में यही देख पा रही हूँ कि वो स्वाद जो वो फास्ट फूड में ढूंढते हैं, उससे कहीं बढ़कर ही मोटे अनाज से बनी हुई रेसिपीज में जो टेस्ट मुझे यहाँ जानने को मिला, जो मुझसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं समझ रही हूँ यहाँ जो बच्चे हैं वो भी इस चीज को टेस्ट कर ही रहे हैं चीजों को, और जरूर इस चीज को फॉलो करेंगे और आगे घर में भी बताएंगे अपने कि हाँ, इस अनाज से, बाजरे से, ज्वार से, जौ से ये चीजें भी बन सकती हैं, जो हम आजकल के जंक फूड्स में यूज करते हैं उसे ना यूज करके इसे एक अलग फॉर्मेशन देके उसे अपने लाइफ में हम फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से हेल्दी रह के आगे बढ़ सकते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे सर? सर, बताएं, अपना नाम बताएं। मैं SID पुष्पिंदर सिंह। बात करें जाए, आज RAF 103 बटालियन में मोटे अनाजों का एक मेला आयोजित किया गया है, जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान के अनुसार हमने आज मोटे अनाज का मेला लगाया है, जिससे हम लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, मोटे अनाज की तरफ आए। ये हमारे देश का सबसे पुराना खाना है, इससे हमारे कई बीमारियों से बचा जा सकता है, इससे हमें कई फायदे हैं जो कि हम सभी आवाम को, सभी दुनिया को बताना चाहते हैं। आज कितने मोटे अनाज आपके पास है? कौन कौन सी डिश आपने बनाई है? हमने मिलेट्स की बनाई है, बाजरा, रागी और ज्वार की खीर,
अब बाजरा, रागी और ज्वार का हलवा और बाजरा, रागी, ज्वार का समोसा। बात करी जाए हमारे जो युवा हैं, जो देश को आगे बढ़ा दे, वो फास्ट फूड की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ उनको ये जागरूकता का संदेश देंगे कि अपने अनाजों के साथ आए? हमारे माननीय 103 वाहिनी के आरएफ के कमांडेंट महोदय ने ये मेला लगाया है ताकि हमारे युवा और बच्चे इस मोटे अनाज के तहत जागरूक हो सके और फास्ट फूड की तरफ कम जा सके। फास्ट फूड हमारे देश का खाना नहीं है, हमारे देश का खाना ये मोटा अनाज ही है। इसलिए सबको ये संदेश हमारी तरफ से है, 103 आरएफ की तरफ से, कि मोटे अनाज का सेवन करें और बीमारियों से बचे, वह अपने शरीर को मजबूत बनाए। मैम, परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका? मैं डॉक्टर साक्षी। मैम, यदि बात करी जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना के तहत आज आरएफ 103 बटालियन में मोटे अनाजों का एक मेले का आयोजन किया गया है कि मनुष्य अपने शरीर को किस तरीके से मोटे अनाजों से स्वस्थ रख सकता है। क्या कुछ जागरूकता का संदेश जाएगा मैम? आज हमने यहाँ पे मिलेट्स के मतलब काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। रागी भी है, जैसे मिलेट्स दलिया है, लड्डू हैं और कुलचा टाइप का भी बनाया है। हेल्दी ड्रिंक्स भी बनाई हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सभी मतलब हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। मोटे अनाज किस तरीके से मनुष्य को स्वस्थ रख सकते हैं? मोटा अनाज जो है डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। जैसे आजकल हम सुपर फाइन पे आ गए हैं, तो उससे बेस्ट है कि मोटे अनाज की तरफ हम वापस जाए, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको डाइजेशन में स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। युवाओं की यदि बात करी जाए, युवाओं के लिए भी सर ग्रोथ के लिए मेन प्रोटीन है, तो मोटे अनाज से बढ़कर तो कोई ऑप्शन नहीं है। फास्ट फूड की तरफ आजकल युवा अग्रसर हो रहे हैं, बच्चे अग्रसर सर फास्ट फूड की तरफ पेरेंट्स का ही ज्यादा रहा है रोल। अगर हम आप वापस आ जाएंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि घर में हमने उनको इंट्रोडक्शन ही वैसा दिया कि ये खाओ, ये अच्छा है। जब हम आ जाएंगे तो बच्चे अपने आप आ जाएंगे। बटालियन ने एक सहारने कदम उठाया है। बिल्कुल। आज मैं आपको एक मिलेट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिलेट जैसे खाना हमें खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। मिलेट्स में प्रोटीन, फाइबर, आयरन जैसी भरपूर चीजें होती है। अच्छा, मोटे अनाज हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकता है? ये नहीं, आप मिलेट्स के बारे में क्या जानते हो? मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स हमारी बॉडी को फिट रखता है। मिलेट में मतलब बाजरा आता है, जवार आता है, ये मिलेट्स में आता है। आपने आज इस मेले में क्या क्या खाया? मैंने इडली खाई, डोसा खाया, खीर खाई। खीर किस चीज की बनी थी आपको पता है? चावल की। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। क्या जो हम रेगुलर खीर राइस वाली खाते हैं और जो आज हमने डिफरेंट खीर खाई है रागी की, क्या वो डिफरेंट टेस्ट था? यस मैम। और वो हेल्दी है? डू यू नो? हेल्दी है। हेल्दी है। और क्या खाया? इडली खाई। आपको इडली कैसी लगी? अच्छी लगी। जो हम बाहर इडली खाते हैं फास्ट फूड में और हमें डोसा कैफे पे बैठ के खाते हैं, उससे टेस्ट डिफरेंट था? उससे अच्छा था। उससे अच्छा लगा आपको? और क्या क्या एंजॉय किया आपने? मैंने गेम्स खेले बहुत सारे, और मतलब सारी एक्टिविटीज की। आपको अच्छा लगा? गुड।